Hello student, good morning. We are going to start part 2nd of class 7th chapter 1st. We have discussed in last class autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. We have completed the autotrophic nutrition and we are going to start today heterotrophic nutrition. In heterotrophic plant there are some parts, some variety, okay, like parasitic plant, saprophytic plant, carnivorous plant and symbiotic plant. I hope you all read that. Okay, now we will start today first category, parasitic plant. Parasitic plant, this plant absorb food and take shelter from another green plant, means they cannot prepare their own food, so that's why they are called heterotrophic, and they take food and shelter from another green plant, किसी दूसरे green plant से food shelter लेंगे. The plant which provide food and shelter is called host, means जिससे parasitic plant ने food और shelter लिया है तो उसको host बोलेंगे. Only the parasitic plant gets a benefit, not the host. Means parasitic plant इसने अपना फूड और शेल्टर के किससे लिया, दूसरे ग्रीन प्लांट से, उसको क्या बोला हमने, होस्ट, और दोनों ने जो रिलेशन बनाया उसमें बेनिफिट किसको मिला, ओनली पैरासाइटिक प्लांट को, नॉट फॉर द होस्ट. ओनली पैरासाइटिक प्लांट गेट्स बेनिफिट, नॉट होस्ट. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट? फर्स्ट इज कैस्कटा, मीन्स डोडर, जिसको आप बेल के नाम से जानते हैं, बेल जो होती हैं. ओके, कॉमनली नोन एज अमरवेल. ओके, अमरवेल. दे डेवलप स्पेशल रूट्स, ये अपने अंदर से स्पेशल रूट्स निकालते हैं, जिनको बोलते हैं हॉस्फोरिया. ओके, विच penetrates into the टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट कौन, जिससे वो फूड लेंगे, उसके टिश्यूज में ये अपने इन स्पेशल रूट्स को, हॉस्फेरियास को एंटर करेंगे, और द फूड प्रिपेयर्ड बाय द होस्ट प्लांट, और जो भी होस्ट प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा उसको ये पैरासाइटिक प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे. सेकेंड इज मिस्टलेटो. इट हैज़ एवरग्रीन लीव्स that can carry out photosynthesis, means they can the process of photosynthesis. So now question is, why they depend on other green plant? Because they rely on host plant for minerals and water, because they cannot gain mineral and water, so that's why they depend on other green plant. So that's why they are called partial parasite, not fully parasite. Like Cascata is a partial parasite. They depend on green plants only for mineral and water. Next is saprophytic plant. You may have seen umbrella like whitish structure growing on rotten in rainy season. Okay, growing on rotting wood during the rainy season. आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद कलर के कुछ स्ट्रक्चर टाइप के, अम्ब्रेला टाइप के, हमको वुड्स पे रेनी सीजन में दिखाई देते हैं. ओके, एग्जैक्टली द मशरूम काइंड स्ट्रक्चर दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ saprophytic plant, means this type of plant called mushroom, and they are types of saprophytic plant because they grow on and derives its nourishment from dead and decaying organic matter, means सड़ी गली चीज़ों से अपना ये फूड गेट करते हैं. They are usually non-green, नॉन ग्रीन होते हैं. दे ऑल आर नॉन ग्रीन and drives
नॉन ग्रीन, वाइट इज वेयरिंग ब्राइट कलर्ड फ्लावर, सबका वाइट कलर के फ्लावर सबके पास होंगे। ओके, एग्जाम्पल आर स्नो ऑर्किड, इंडियन पाइन मशरूम एंड yeast microorganism, you have studied that. The roots of saprophyte contain fungi which are capable of digesting dead and decaying matter. Means this plant carry fungi. What it do for this plant? Capable of digesting dead and decaying matter. ये सेप्रोफाइटिक प्लांट किस पे थे, कहाँ से अपना फूड गेट कर रहे थे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो इसके लिए जो ये फंजाई है ये इनकी हेल्प करता है इस मैटर को डाइजेस्ट करने में। व्हेन फंजाई कन्वर्ट दिस मैटर इनटू शुगर, जब ये इस सड़ी गली चीज़ों को, डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर, दे कैन बी यूज्ड एज फूड बाई दिस प्लांट। तब ये प्लांट उस शुगर का यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। ओके, नेक्स्ट कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस मीन्स व्हाट? अनदर नेम इज इंसेक्टिवोरस। ओके, इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस और हिंदी में आप इनको बोल सकते हैं मांसाहारी। And question is again arise, are plants are also carnivores? Yes. A few plant feed on insect for obtaining their nutrition. अपनी न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। These plant are usually green, वैसे वो ग्रीन हैं, बट दे कैन मेक देयर ओन फूड, और अपना भोजन बना सकते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। They are also green, they can do their photosynthesis process, but for nitrogen requirement they depend on insects. Okay, few examples. Pitcher plant. Okay, in the pitcher plant the leaf of modified to form tubular pitcher like structure. pitcher like structure, pitcher मतलब घड़े जैसा, मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। hairs are present in its inner side, अंदर इनके थोड़े कांटे कांटे जैसे। These hair do not allow any insect to climb back up and escape. If any insect enter in this type of plant, then these hair like structure, these they do not allow any insect to climb out and escape. The fluid inside it contain digestive juices. इसके अंदर एक फ्लड टाइप का होता है जो डाइजेस्टिव, पचाने के काम आता है, जो इंसेक्ट को अंदर फिर कंज्यूम करेगा। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, बिकॉज दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्लांट। सम प्लांट लिव विद अदर प्लांट एंड शेयर देयर फूड एंड रॉ मटेरियल। शेयर देयर फूड, सम प्लांट्स आर देयर ओके विच शेयर देयर फूड एंड रॉ मटेरियल, जो अपना भोजन शेयर करते हैं किसी दूसरे के संग। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसमें मेन बात, शेयर करते हैं दोनों एक चीज़ और दोनों को ही इससे फ़ायदा होता है। कुछ चीज़ की एक के पास कमी है तो वो दूसरे पर डिपेंड है, और वो दूसरे के पास जो कमी है वो पहले वाले पर डिपेंड है। ओके, सच रिलेशनशिप आर सेड टू बी सिम्बायोटिक। तो जब एक दूसरे से दोनों फायदा ले रहे हैं तो ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। इन ए सिम्बायोटिक अरेंजमेंट वन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑटोट्रॉप। ओके, एक उनमें से ऑटोट्रॉप होगा, वो कैन प्रिपेयर इट्स फूड एंड मैन्युफैक्चर ओन फूड वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। Means first plant cannot get water and mineral, but it can prepare its food, so it's depend on other, and other cannot prepare its food and but it supply water and mineral from the soil to other plant. एक
फूड बना रहा है, वाटर मिनरल नहीं ले पा रहा है, दूसरा वाटर मिनरल की पूर्ति उसको देगा तो वो उससे फूड लेगा, और दूसरा वाटर और मिनरल लेगा। ओके, यस। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, लाइकेन। व्हाट? लाइकेन। वन पार्टनर इज एल्गी। अब इसमें दो जो हैं वो कौन कौन है? वन इज एल्गी। व्हाट इज इट्स रोल? इट्स रोल इज प्रिपेयर फूड, ये भोजन बनाएगा, बट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, लेकिन ये एल्गी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो जो दूसरा कौन? वन पार्टनर इज फंगस। वन इज एल्गी, सेकेंड इज फंगस। ओके, तो विच प्रोवाइड वाटर मिनरल एंड शेल्टर टू एल्गी। तो दूसरा उसको वाटर मिनरल और शेल्टर दे रहा है। ओके, बट इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, मैन्युफैक्चर इट्स फूड। एल्गी प्रिपेयर कर रहा है फूड, वाटर मिनरल नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। फंगस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। तब एक दूसरे पर ये डिपेंड रहेंगे। बोथ लिव टुगेदर इन इंटीमेट एसोसिएशन एंड आर अनेबल टू इंडिविजुअली। तो दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइजोबियम। ओके, दिस इज ए बैक्टीरिया, ओके, विच लिव्स इन द नोड्स ऑफ लेग्यूम्स, जो दालों में पाया जाता है, द नोड्स ऑफ लेग्यूम्स। राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो राइजोबियम का रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम? इट्स convert atmospheric nitrogen into usable form. The plant in turn provide nutrients for the bacteria growth. तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन सप्लाई करता है प्लांट को, और लेग्यूम्स इसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ओके, दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट इज completed. In next class we will discuss its exercise. Till then, listen it and learn it. Okay, thank you.